و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہیں اس خالق کائنات نے ہمیں نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بعد از نماز اللہ کریم نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارا یہاں پر کھڑے ہونا، ذکر سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے، اس میں اللہ اپنے نیک بندوں کو رکھے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس کی مثال میں کچھ یوں عرض کرتا چلوں کہ اپنے گھر کے اندر انسان ایک الماری اگر بناتا ہے، اس میں اپنے صاف ستھرے اور دھلے ہوئے کپڑوں کو سجا دیتا ہے، یعنی اسی لیے سیف کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سیف کے اندر گندے کپڑوں کو رکھا جائے، اس کے لیے ڈسٹبن رکھی جاتی ہے جی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر جنت بنائی ہے تو اس میں اپنے نیک بندوں کو رکھے گا۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں گے، اور آپ اندازہ فرمائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معراج کے موقع پر، تو جب جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، خالق کائنات سے پوچھا کہ مالک یہ جہنم، آپ فرمائے گا کہ یہ گناہ گاروں کے لیے ہے، یہ جنت نیکوں کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں مبارک آنسو آئے۔ کریم لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین، امتی میرا ہو تو مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے پیارے محبوب، اس طرح اپنے آنکھوں میں آنسوؤں کو کیوں بہا رہا ہے؟ رب فرمائے گا میں تجھے محبوب نماز کا تحفہ دے دیتا ہوں، یہ تیری امت دن میں 5 نمازیں پڑھے گی تو میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا جی۔ نمازیں 5 پڑھے اور پھر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے والی شان ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت کی چابی ہے نماز۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی ایک تالے کی چابی دوسرے تالے کو لگا دی جائے تو اس سے تالا کھل جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ بے شک آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جس تالے کے دندانے جتنے ہوں گے اتنے ہی دندانوں والی چابی اگر اس میں لگائی جائے گی تو پھر تالا کھلے گا۔ تو برادران اسلام، نماز جنت کی چابی ہے اور اس کے دانے ہیں 5۔ پہلے دانے کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام ظہر، تیسرے کا نام عصر، چوتھے کا نام مغرب اور 5ویں کا نام ہے عشاء۔ یہ 5 دندانے ہیں اس چابی کے، اور اگر ہم ایک نماز چھوڑ دیں، 4 نمازیں نہ پڑھیں، 4 چھوڑ دیں، 3 نہ پڑھیں، 3 پڑھ لیں، 2 نہ پڑھیں، تو مجھے بتاؤ کیا پھر ایسی چابی سے وہ تالا کھل جائے گا جنت کا؟ تو برادران اسلام، لمحہ فکریہ ہے، آج ہم کتنی آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاموں میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، اس قدر محو ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا وقت جو ہے وہ نماز کا ضائع ہو رہا ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے۔ ہم اس وقت کو سمیٹیں، اگر یہ کہیں کہ جناب بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لیں گے، تو یہ شیطان کے وار ہیں۔ اس لیے وقت پر نماز کو ادا کریں اور اپنے دل کو مطمئن جانیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں کہ یار میں نے نماز ظہر ادا کر لی ہے، اگر اس سے عصر سے پہلے موت آ بھی گئی تو میں نے اپنے رب کا فرض ادا کر لیا۔ تو برادران اسلام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں، اور نماز ویسے بھی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
अगर हम चाहें कि सरकार ने अलैहिस्सलाम की मुबारक ठंडक महसूस करें तो हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें। और आप अंदाज़ा फरमाएं बरादरान इस्लाम, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की ठंडक पाना चाहें तो आज भी अगर नमाज अदा करें और सुकून होकर तो दिल को सुकून मिलता है, रूह ताज़ा होती है। और अगर नमाज छोड़ दी जाए, इंसान इधर उधर में वक्त गुजार दे, वक्त भी ज़ाय हो जाता है और इंसान का वो लम्हा भी लिखा जाता है कि इस वक्त में इसने नमाज जो है वो अदा नहीं की। तो बरादरान इस्लाम, आइए अपनी पेशानी को सजदों से सजाएं। अगर तो नमाज की पाबंदी है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं तो आज इस दर्स की बरकत से इरादा फरमाएं, नियत कर लें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं भी अल्लाह के हजूर यहद करता हूँ कि मालिक इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। ऐ मालिक, तो हमें तौफीक बख्शना कि हम पाँचों नमाज़ें खैर वफ़ियत के साथ अदा फरमाएँ। तो बरादरान इस्लाम, हजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ये हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। और बाज़ औक़ात देखा गया है कि अगर कोई साहब एक्सीडेंट से उनकी वफ़ात हो जाती है या बीमार होकर वो दुनिया से चला जाता है या इस तरह के कोई मामलात हो दुनिया से चला जाता है, देखने वाले कहते हैं कि यार ये बहुत बुरी मौत मरा है, इस पर बहुत सख्ती से मौत आई है। लेकिन कभी बरादरान इस्लाम हमने गौर किया है, ये बुरी मौत नहीं। अगर कोई एक्सीडेंट से मरा तो उसको अल्लाह ने शहादत का मर्तबा अता फरमाया। अगर कोई बीमारी की हालत में दुनिया से गया तो उससे भी रब ने शहादत की मौत अता फरमाई है। बुरी मौत क्या है? अगर बंदा बेनमाजी दुनिया से चला जाए तो इससे बड़ी बुरी मौत कोई नहीं। अगर बंदा तकवा और तहारत से खाली दुनिया से चला जाए तो इससे बड़ी बुरी मौत कोई नहीं। इसलिए आखिरी सांस का कोई पता नहीं कि इसने कब आ जाना है। आप इरादा फरमाएं और अहद करें और नियत करें इस बात की कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसी बात पर मैं उमर भाई ने मुझे एक मसला जो है वो कहा था, तो उस पर मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात अर्ज़ कर देता हूँ। हदीस मुबारक है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने घर में तशरीफ़ लाए और आपकी ज़ौजा मोहतरमा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक रिवायत में आता है कि चिल्ला कट रही थी और एक रिवायत में आता है कि आप झाड़ू दे रही थी। तो सरकार ने अलैहिस्सलाम जैसे ही घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो हजूर अपनी मुबारक चारपाई पर तशरीफ़ फरमा हुए और मेरे आका अलैहिस्सलाम का नालैन शरीफ गांठने वाला था। हजूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा, तुम वो हमारा ज़रा सुई धागा तो देना, हमने अपने नालैन जो है उसको गांठना है। तो इससे कबल बीबी आयशा ने आपसे एक सवाल जो है वो किया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपका बड़े कमाल दर्जे का हुस्न रब ने आपको अता फरमाया था और आपका आलम यह था कि आप अपने चाहने वालों में निकाब करके चलते थे, यानी चाहने वालों को अपना हुस्न नहीं दिखाते थे तो निकाब करके चलते थे। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यूसुफ को जो हुस्न मिला आपके हुस्न का सदका मिला है और आप बगैर निकाब के ही अपने चाहने वालों में चलते हैं। समझ आ रही है बात की? आप अपने चाहने वालों में बगैर निकाब के ही चलते हैं। या रसूलुल्लाह, इसकी वजह क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आयशा तुम्हें इसका कभी जवाब देंगे। अब ये वो लम्हा आया जब मेरे आका ने आपको जवाब दिया। फरमाते हैं कि आयशा वो सुई धागा लेकर आओ। आप फरमाते हैं मैंने हजूर अलैहिस्सलाम को सुई धागा दिया और मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने मुबारक नालैन शरीफा को गांठने लगे। फरमाते हैं कि मैं हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे की जानिब देख रही थी। हजूर का चेहरा ही ऐसा हसीन और जमील था कि जो कोई मेरे आका का चेहरा देख लेता फिर उसका तमन्ना ही ना इसकी ये होती कि मैं अपनी पलक भी झपक लूँ। इस कदर हसीन और जमील मेरे आका का मुबारक चेहरा था। फरमाती है कि मैं हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे की जानिब देख रही हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुबारक सुई को अपने नालैन शरीफ के साथ लगाया तो करीम आका अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी से एक पसीने का तुनका इस जानिब से निकला
और एक पसीने का तुनका इस जानिब से निकला। फरमाती मैं ये कमाल का मंजर देख रही थी, जैसे मैं उस मंजर को मैंने देखा, मेरी आंखें टिक लगाकर हजूर की पेशानी की मुबारक पेशानी की जानिब देखने लगी। फरमाती जैसे ही ये दोनों तुनके आपस में यहाँ पर आकर मिले तो नूर का ऐसा फवारा फूटा कि हजूर अलैहिस्सलाम का इस कदर हुस्न जमाल मैं देखकर ताब ना ला सकी तो मैं बेहोश हो गई। फरमाती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी बाहों में लिया और बाहों में लेकर फरमाया कि आयशा होश में आओ, क्या हुआ? फरमाती जब मेरी आंखें खुली तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुस्न जमाल इस कदर है, आपका चेहरा इस कदर नूरानी है कि मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं ताब नहीं ला रही। या रसूलुल्लाह आप पहले वाले रूप में तशरीफ़ लाइए। हजूर फरमाते आयशा अपनी आंखें तो खोलो। आप फरमाती जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजरा क्या था? अब काबिल तवज्जो गौर है। फरमाती या रसूलुल्लाह ये मामला क्या था? मेरे आका ने इरशाद फरमाया आयशा तुम्हें याद है तूने हमसे एक बार सवाल किया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और वो अपने चाहने वालों में नकाब करके चलते हैं, तो मेरा हुस्न और मैं बेनकाब ही अपने चाहने वालों में चलता हूँ। आप फरमाती है जी या रसूलुल्लाह मैंने आपसे ये सवाल किया था, मैंने अर्ज़ की थी। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे चेहरे के आगे 70,000 नूर के पर्दे रखे हैं, फिर कहीं ये आप बशर जाकर मेरा चेहरा देखने के काबिल है। फरमाया आयशा अल्लाह ने अभी एक जो है वो नूर का पर्दा मेरे चेहरे के आगे से हटाया, एक पर्दा, अभी सारे नहीं, एक पर्दा हटा तो तू मेरा चेहरा देखने की ताब न ला सकी। अगर रब्बे कायनात सारे पर्दों को हटा देता तो तेरा आलम क्या होता? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बरादर अलैहिस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम इस कदर हजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक चेहरा नूरानी है। और हमारा अकीदा भी इस तरह का नहीं कि नूर ये कहा जाए कि जिस तरह ये लाइटिंग है, जिस तरह ये नहीं। हमारा अकीदा ये है कि जिस तरह हमारे आका हैं उस तरह का कोई और बशर है ही नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम जैसा और कोई बशर है ही नहीं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम नूर है। क्यों कि जिब्राईल अमीन ने करीम आका अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? फरमाने मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्रील, अल्लाह ने कायनात के अंदर सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, आपने जब रूह फूंकी गई तो देखा कि फरिश्ते किस कदर ताज़ीम कर रहे हैं आपके पीछे पीछे अल्लाह की बारगाह में। मालिक ये ताज़ीम कैसी है? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ आदम ये तेरी ताज़ीम नहीं, ये मेरे महबूब के नूर की ताज़ीम है जो तेरे माथे पे चमक रहा है। तो फरमाया कि अगर ये ताज़ीम उस नूर की हो रही है तो ये ताज़ीम कैसे? इसको तो चाहिए कि ये आगे आए। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फरिश्तों को, सारे फरिश्ते ताज़ीमन आगे तशरीफ़ ले आए। तो इतनी ताज़ीम जब देखी तो फिर अल्लाह की बारगाह में या अल्लाह मैं भी उस नूर का दीदार करना चाहता हूँ जिस नूर की ये ताज़ीम कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ आदम अपने अंगूठों की जानिब देख। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने अंगूठों की जानिब देखा तो करीम लाजपाल आका अलैहिस्सलाम का नूर उनको अपने अंगूठों के नाखूनों में नजर आया। तो इस कदर नूर था कि देखकर ताब न ला सके, चूम कर आंखों से लगा दिया। जी ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में नहीं तो फिर समझ लो कि अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, ईमान पूरा नहीं हुआ। ईमान तभी पूरा होता है जब बंदा कहे कि मेरे आका की बात, मेरे आका की शान तो वराउल वरा है। हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रा सा भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना या ज़रा सा भी इस तरह की कोई बात करना जिससे माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की शान में फ़र्क आता हो तो समझ लो कि फिर वो बंदा ईमान से